are talking something very great, which you have conceived 15 years before. I thought, let it not be an informal chat. Let it be an absolutely Yeah, formal chat, and with a view whether that idea can be really expanded. It could be further purified. If right. required, some research could be done on that, and then we Definitely, can definitely. take it for the general welfare of the society. Of course. So, so basically, I got so inspired with the, uh, dairy movement in India. I think that is the biggest success story of independent India, uh, where we became like not only self-sufficient in dairy industry. In fact, we are exporting to many countries dairy product, and that is that PJ Korean, he started this thing, cooperating movement in Gujarat, and that became so successful, um, that I think it's in world over, like this is the one of the biggest success story in agriculture landscape, I would say. So in India, actually, biggest problems farmers faces actually like two things. First is land owning. So average land owning in India is around 3 acres, which is very less compared to world average. Which is like really very, land holding is like, I would say, it's not sustainable. If I'm a farmer, if I own only 3 acres of land, there's no way I can make it profitable, enterprise out of like just 3 acres of land. Because if I buy, suppose, equipments, because in order to do farming in a good way, I need to have good equipments like tractor, and it requires full machinery basically if you really want to do farming uh, with latest technology. So 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 basically, like, problem is like, farmers, they don't have that kind of technology uh, to grow their crops using latest and greatest technology which are available. I lived in California, so I know. I was so overwhelmed when I saw how these farmers are growing. Like, they have like more than 500 acres of farmland, and there will be like hardly 4 or 5 people. They are actually cultivating the entire 500-acre land because they use machinery. You will hardly see any people working in that farmland. You will see all these farmers, they are operating these big machineries. So so one thing is like, like, land holding is very less in India, where farmers cannot afford to buy big machinery just for 3 acres of land. Second thing is, lack of education in our farming community, because they are not very well versed with latest and greatest innovations which are happening around the world in the field of agriculture. And how, first of all, they don't know which crop is more profitable, and how they should grow so that they can increase the productivity. So second thing is like, they are not aware of all those new techniques. And third thing is, basically, they you know they are like, they don't know like which crop is in demand. Basically, they are unaware of market situation. So for example, in certain part of India, most of the farmers will grow one kind of crop. So for example, like, in 60s, when India was not self sufficient in terms of food grains, uh, Indian government actually give some incentives to grow wheat and rice, so that
the government can feed, the entire population, so that they don't have to depend on American imported wheat. So now everybody is growing wheat, and India produces so much in abundance that the value is like so down. That's why these farmers are actually demand for MSP, which is actually they're right actually, but the problem is like, if we will keep growing the same thing where demand is not there, market works on demand and supply. If suppose there are too much production of wheat, then obviously prices will go down. So, but there are few grain items which India imports. For example, pulses. Until like 3 years back, if you remember, pulses prices went up very high. So India actually, imported a lot of pulses. Actually, India still imports pulses from the world. So, so basically, problem is like farmers, they are not aware of market, and their land holding is very small. They are not educated, and they are not aware of new techniques in farming sector, how they can actually increase their productivity. So, and when you have like very small land holding, then most of the lands goes in making demarcations like mad. If you will go to any farm, Yeah. yeah. So most of the lands like goes away, waste actually, because you are making all that things. So my idea was like, how we can, because I lived in California, so I have seen how these farmers are doing wonders. Hardly 4 or 5 people, they are like, cultivating 500 or more land. And if you will see their farms, you will be amazed, how much they can grow in 1 acre, you know, compared to India, like at least 3 or 4 times more than what our farmers actually can grow. So and not only that, like they keep actually they are not just growing just one crop in a year. They use the same land for like multiple crops because they have machinery, they have the water uh, you know water system. Basically, it's like drip irrigation, you can say. So you are not wasting water also, because in India water is also a big problem, right? We have like many states where water is in so scarcity, they don't even have water to for drinking purpose, forget about farming. So so my idea was like, if we can use the same method like Mr. PJ Kurian actually implemented, like cooperative dairy industry. So same concept, like all these farmers. So for example, in a village there are, say, an average there are like 500 farmers in that area. So all these farmers can come together and uh, form a cooperative society. And we need few people who can actually manage that cooperative, like some educated people who have degrees in agriculture and also management. And those people can work with the banks to get some loan so that they can buy some machinery. And based on, and those people can also do the market research, what they can grow in that particular area, and what is in demand, what they should grow, so that their crops can yield more money compared to like doing the traditional farming where they are just growing wheat and rice, which demands a lot of water. And also, when crop comes, prices goes down, then they have to struggle to even meet their whatever is the was the investment on that crop. So
So idea was like, so for example, in that corporate, like any other industry. So like, in a company, you have shareholding. So suppose if I have 10 acre of land, so based on how many acres of land I have, I'm contributing to that pool of land. I will become, shareholder of that percentage. So all these farmers, whoever is actually bringing their farmland in that pool of land, they become shareholder of that cooperative. And so that cooperative can decide what they want to grow and what crop they should actually cultivate, so that that will be in demand when crop is ready. And also, not only that, and then that cooperative can also start like food, packaging in, for example, like pulses and flour. You can actually package them and you can sell to the local grocery stores and some chains. Like nowadays in India, there are big corporations who are running these um, you know these grocery store chains across India. So you can actually tie up with them and you can keep supplying, and that will actually yield much more money. So, for example, if you are selling your wheat for like 20 rupees per kg, if you will, convert into flour and package that, same thing you can sell it for 100 rupees per kilogram. So in that industry, cottage industry, you can actually employ all these farmers. So whoever is actually shareholder, they can also work in that industry. So whoever is actually working, they are like, for example, there may be some silent partner, some will be like, active partner where they are also working. So if whoever is working, they can also earn salary out of it. And whoever suppose don't want to work, they can become silent partner in that cooperation. And so farmers, they can get like, job, within their village. They don't have to go to cities and live like in a, slums. And they can live in their village, good life, and they can get job in their village itself. And at the same time, they can get at least 3 times more money whatever they earn actually in their very little small, farmland. So that was my idea. And also whoever is like, also part of, like, suppose some people who have degrees in agriculture or management, who are looking after managing this entire cooperation, they can get some partnership also, and at the same time some salary out of it. Still, these farmers can make at least 3 to 4 times more whatever they are making right now. Okay. Sanjeev ji is a really wonderful and great idea. And the same idea, basically, we want to go at the different wavelength. Though idea at the back will be the same. Mhm. Now, let's talk of the Mr. Kurian, right? Mhm. He simply gathered the milk. Right. Now, let's basically here that we will like to discuss two dimensions, very important dimension. As you rightly said, what to be produced, where to be produced, Right. right? And then how to enforce that model. So the first thing you said that about the cooperative part, and so basically I am having a very ready-made model for that, where we will have the advantage of the cooperative as well as capitalism. And Mm. you partly you have also answered in that, because you said that there will be selecting partner, there will be active partner. The active partner will be employed and they will be getting salary also. Salary out of it. So Yes. they will be earning
on the basis of proportionate asset which they are giving to the joint venture, and Right. and they will be earning for the contributing their service part of it or labor Yes. part of it, right? Yep. Right. Mhm. Now, what I'm saying, the main problem is of the idea, main problem of the basic concept. See, Mr. Korean was only intending to collect the milk and process the milk and do some kind of the processing. That's so that the milk can stay fresh, or it should not become bad before it reaches to the consumer. Right? That was the whole idea. So it was a cooperative, but Mr. Korean has not really went into the ingredient of the milk. So Mhm. I am saying not to produce only the milk. Can we create the milk which is Amrit like? Mhm. Can we create a milk which will be having the medicinal value? Now the very target has changed. You were looking for the milk and you were looking for the production. You are looking for the agriculture and you are still looking onto the quantitative part of the agricultural production. Right. I am looking into the three dimensions. First dimension, what to be produced, in what quantity it should be produced, Exactly. Yep. and then what should be the micronutrients, micro medicinal value, micro things where the Vedic knowledge and things should be used so that it will no more would be a grain. Say in Punjab, we are producing grain, right? Right. Making use of the fertilizer, making use of pesticide, and Mhm. that grain, I will say, we will not say it's a grain. We are producing poison. We are producing Exactly. carcinogenic material. Absolutely. So we are feeding ourselves with that carcinogenic material because we are having the hunger, right? Mhm. We have to feed something, and since that is the only available quantity, so we are eating it. Right. But it is now not only the grain, it is a carcinogenic grain. Mhm. It is a cancer-causing grain. Now, Yep. now let's go to the milk dimension. Then I will come out to the solution part, and then we will talk about the structure part also. Mhm. Basically, before moving to that, I will try to tell you that crime-free Bharat is having green herbal, chemical-free, healthy Bharat, which is largely agro part of the crime-free Bharat, right? Right. Right. Then it is having one milk-rich Bharat. So whatever you are saying, that is also part of the crime-free Bharat, well-conceived part of it. Then third part is honey-rich Bharat. Mhm. So even that honey, which is having the great medicinal value, and at present, whatever the honey we are getting, even irrespective of the source, the reliability of the honey is very bad. So basically, when we talk of the reliability, we will be using that our evidence value kind of concept, so that anybody should not be in position to do anything hanky panky. And if anyone does, then we can identify who is the person, what is the source, who has done it, then we can prosecute that person with certainty. Mhm. So ultimately, why we want to live a pious life? Because we feel that there is something called punya, there is something called pap, and if we will do punya, it will go to our favor. If we do the pap, we will have to suffer some part. So it is something like that. Whatever you will be doing, that whether a pun or a pap, system will capture you and will be in position to logically take you to the logical end, so that the negative tendency should not flourish. At Mhm. present, what is happening? Negative tendencies are flourishing. So this is the just background I wanted to tell. So we are Mhm. not talking something which is inconsistent with the basic philosophy of crime-free Bharat, Right. because out of the 16 Bharat, these three parts which you were discussing, they are already the part of the crime-free Bharat. And you must be thinking that how the crime-free and related with this. So I will tell you how these are relevant with the crime-free Bharat, Mhm. because it is not that registration of the crime, it is not the detection of crime, it is not the deburdening of the police, it is not the certainty of the conviction, it is not even certainty of prevention. If we would be empty stomach, we will commit crime to go to jail. When we will commit crime to go to jail, and we will commit the crime when we feel that there will be no jail, right? But I am Right. saying
because the system is so bad that it is not even taking cognizance, it's not detecting, it's not convicting. System will take life. You will take, by the time you will be convicted, probably you will die, and so that you are running no risk kind of thing, right? So even if we feel that we transform the whole system and we are having certainty of registration, certainty of detection, certainty of conviction, and even certainty of prevention, the prevention will only work when you are having something to eat. That's true. Your stomach has to be full. With all certainty, we will commit crime just to go to jail because my stomach is empty, and if I feel going jail is a better option, then I am taking a very cautious decision. I am taking a prudent decision in given scenario. Say, I don't have anything better to do. Right. I know that crime cannot be committed. I have to fill my stomach. I have to have a roof under which I would like to have myself. And I feel that all these things would be available in jail. Then I will commit the crime, or people will commit the crime to go to jail. That will be the worst scenario. So everybody should not only be, he should be wealthy also. उसका stomach जो ना पूरा भरा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि he should have the enough wealth to enjoy his quality of life. Exactly. So that because somebody may question, you are talking of the crime-free Bharat, then why are you talking of the agriculture? Why are you talking of honey? Why are you talking of milk? So first, I wanted to tell you that whatever we are talking, it is a part of the well-conceived strategy, and it was already part of it. Now I will go just a minute, Sanjeev. Allow me to unfold. So the first part, we don't know what to grow, where to grow. Right. Exactly. Right. Now the nature has conceived the things in the best interest of the humanity and best interest of the nature. Right? Assume kariye that whatever the things you should eat in summer, that is produced in summer. By making use of the wrong use of the science, now we are producing it around the clock. But when we are producing round the clock, it will not be having those medicinal value, and there is a likelihood that it might have the carcinogenic value also. It might create some autonomous diseases also. We are not very sure. So, whatever we are trying to project as a great achievement, it is not an achievement. You are playing with the nature, and nature will punish you for that. Right? Now, where is that knowledge? So there are n number of the people, those who have really dedicated their life, right? Maithili Saran Gupta was a police officer, maybe engineer before, maybe manager also, but essentially a police officer. But there are n number of the people, those who have dedicated their life for this cause. And their efforts are isolated, and they could not visualize the things in a mega format. Now a time has come where those people should come and should contribute their lifetime knowledge, and that knowledge should be assimilated and should go the rigor of crime-free Bharat research methodology. Because we are not ready to accept any knowledge, we are not ready to accept any technology unless it go of the rigor of CFB research methodology. Because we want to realign existing knowledge, we want to even realign the traditional knowledge with the rigor of CFB research methodology. That will help us to realign with the vision, number one. First of all, we want to do certain research, and I am trying, and basically even the research, this agriculture university, they are also working with us. Now, we want to first list out what could be the things which we are missing out. Now, let's not talk of the macro kind of the things, pulse, wheat, etc. Now, let's talk of the herbal things, medicinal big things, which we are consuming when we are falling sick. I am saying what those things we can make a list which every healthy person should eat, and if he is eating those things, then there's a guarantee that he will not fall sick. So now let's shift from
treatment to the healthy living, right? Now, keeping this treatment to healthy living, how we can now utilize, कहना चाहिए जो नेचर का वरदान जो भारत को मिला है, बिकॉज भारत के इतने सारे ऋषि थे, ये थे, तो जो चाहे संजीवनी हो या अदर फॉर्म ऑफ द मेडिसिन हो, उनको हम आइडेंटिफाई करें और उसको सब जगह पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि द मोमेंट द सेम जो है ना plant is grown elsewhere, it will not have the same degree and same ingredient and same effect, right? So let's not try to generalize कि जो है ना जो कश्मीर में पैदा हो रहा है उसको हम मध्य प्रदेश में और भोपाल में पैदा करें. It is not done. जो केरला में बेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हम भोपाल में प्रोड्यूस करें and then feeling proud of it कि हमने यहाँ भी पैदा कर लिया. हम चाहे इस बात को समझ पाए ना समझ पाए, but micronutrient value जो है ना of that plant will be the different, that tree will be the different, herb will be different, and nutrition and other effect would be different. So nature का कौन सी चीज कहाँ पे बेस्ट हो सकती है, हम वो आइडेंटिफाई करें, right? Now let's imagine कि हम उसको डेली लिविंग का हिस्सा बनाए. जैसे एज्यूम करिए कि यदि आपको लगता है कि 10 ग्राम जो है या 20 ग्राम शहद आपको खाना चाहिए, तो जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 10 ग्राम, दैट विल बिकम आवर टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग हनी. यदि लेट्स प्रिज्यूम कि हमें मिल्क, और वो भी अब अभी अपन अल्फा 1 अल्फा 2 की बात थोड़े अब करते हैं, तो हमें अल्फा 1 प्रोड्यूस ही नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्वांटिटी से नफरत है. इस समय हम क्वांटिटी पे क्यों जोर दें, हम क्वालिटी पे जोर दें. सो क्वांटिटी शुड नॉट बी अवर एसेट. हमें कह रहे हैं हम कम बेच के, देखो सोना और अदर मेटल, यदि आप सोना पैदा करेंगे तो आपको जो है लोहे को बेचेंगे और सोने को बेचेंगे तो आपको किसमें पैसे ज्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली सोने में ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा. तो क्वांटिटी में हम क्या करें, हम सोने जैसी वैल्यू अपने हर चीज में पैदा करें और फिर हम उसे लोहे के रेट में ना बेच के हम उसे सोने के रेट में बेचें. यदि एज्यूम करिए कि हम अब नाउ लेट्स से हम पहले एक रिसर्च ये करना चाहते हैं कि इंडिया में डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, प्रोसेस्ड कंजम्पशन के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, राइट? इसमें जो है we can have the mathematical formulae. Let this estimate should be revised annually or 6 monthly, where our processing capacity will also be reflected. Because आज यदि आप कहें कि हमें प्रोसेसिंग हाइपोथेटिकली कर रहे हैं आप और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस भी कर लोगे तो वो जो है ना अनप्रोसेस्ड रहेगी, probably may not be sold also. So that will be over production. So I am saying कितना चाहिए, that there should be the robust model to calculate. Number one, for the direct consumption, for the processed consumption, then it will have national and then international. So look, right? So धीरे से यदि हमें खुशी के जब हम अमृत पैदा कर रहे हैं तो हम इस अमृत को कैसे जो है बेच पाएंगे, कितना बेच पाएंगे, and then we can now, luckily now national and international technological chains are available. एंड वो चेन जो है हम अल्टीमेटली उन्होंने प्लेटफॉर्म ही तो क्रिएट किया है. क्राइम फ्री भारत कैन आल्सो क्रिएट द प्लेटफॉर्म. और आपको एडवांटेज है कि क्योंकि सभी को आप धन बांट रहे हो तो वो लोग आपसे जुड़े होंगे. ऑन द टॉप ऑफ इट योर नेशनलिज्म इज नोवेयर इन पिक्चर बिकॉज़ यू आर नॉट हियर विद द प्रॉफिट मोटिव. सो योर नेशनलिज्म, योर इंटेंशन, योर इंटेंसिटी टू ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड इज नॉट क्वेश्चनेबल. You are not here with the profit motive. Hence, you will, if you are really sticking to your guns, then you will enjoy the better credibility. Yep. So instead of you are approaching them, since you will be holding the people, they will approach you. कि साहब मैं आपका जो इस इंजन का यूज करना चाहता हूँ, so that we will also get some business, and for that we will be with your terms and conditions. Right? And where some जो है ना even money can flow for the crime free Bharat also, which can be used for the redistribution, because crime free Bharat is distributing wealth.
Right. It is one of the purpose to really how to create wealth and how to distribute wealth. So ये आपसे जो ना नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि you have to join me for your selfish motive, because ह्यूमन बीइंग को सेल्फिश ही पैदा किया गया है। हम मंदिर भी जाते हैं तो 4 चीजें मांगते हैं भगवान से। यदि हम साधु भी बन गए हैं तो हम कम कुछ नहीं मांगते, तो मोक्ष ही मांगने की कोशिश करते हैं, राइट? तो इसका मतलब है कि एज ए ह्यूमन बीइंग सेल्फिशनेस इज पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर। इस ह्यूमन नेचर को हम अकोमोडेट करके असिमुलेट कर लें। सो लेट्स से कि आपको नेशनलिस्ट पर्पस के लिए काम करना है, आप भूखे रह के करिए, वो बात खत्म कर रहे हैं। बट वी आर सेइंग कि हम एक बैकएंड मॉडल डेवलप करेंगे जो हर किसी के कंट्रीब्यूशन को कैप्चर करेगा। इट विल कैप्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ मनीष कुमार आल्सो, इट विल कंजीव द of Sumit also and Sanjeev also and Santosh also and everybody, right? And then back-end model, जब भी इसका revenue flow चालू होगा तो उनके contribution को भूला नहीं जाएगा, चाहे वो अभी ना contribute कर रहे हो, and probably that money may start flowing. So people will be, the moment that will be happening, it will be creating a bonhomie for, if not for the very even for the very selfish purpose, there will be bonhomie. Right. Now let's go back. Let's go back to the original concept. So first research we want to do, what could be produced where, best suited, right? Now we want to do, सब unemployed हैं, तो जो why we should not capture things, एक हम डिवाइस बनाए, ऐप बनाए, सेंसर बनाए, और हम सॉइल की क्वालिटी को जो है ना, उसकी ह्यूमिडिटी से लेके हर बेसिक इंग्रेडिएंट्स को हम कैप्चर करें, राइट? जनरल हमें मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ पैदा होती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट देन वी कैन से कि ये चीज इस एरिया में पैदा हो सकती है। आई थिंक वो डेटा गवर्नमेंट के पास है कि कौन से एरिया में कौन सी चीज अच्छे से पैदा हो सकती है, वो जो मतलब जो ना इट्स ऑप्टिमल फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप। तो गवर्नमेंट के पास वो सारा डेटा है, एक्चुअली they have all that data. Now what I am saying, okay, so what I am saying that आप जो है ना हर्बल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसमें आप जो है ना फर्टिलाइजर फैक्ट्री डाल रहे हैं, because but we are saying कि we will put the microbe, we will put that अमृत मिट्टी, and so it will be a mix of the traditional things and modernity. Right. We are not only talking of the कि केचुए की खाद डालेंगे, we are saying केचुए की खाद भी डालेंगे, माइक्रोब्स भी डालेंगे, एंड जो माइक्रोब्स की कैपेबिलिटी है डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सॉइल में लेने का, हम उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और दोनों को कंजक्शन में करेंगे। Right. वो माइक्रोब कैन बी वेरी वेल ग्रोन इन ए हर्बल एनवायरनमेंट। सो व्हेन दैट देयर विल बी हर्बल फर्टिलाइजर एंड विद द माइक्रोब, that content of the herbal fertilizer will be helping even the microbes to grow faster, right? And those microbes and the herbal fertilizer put together will become a fertilizer factory. And since we are producing that fertilizer factory, so we will keep on adding the value. So we will be in position to know the micronutrients. Now you say ki why we need to do it? We need to do it just to have the updated database, number one. Number two, जो है ultimately the whosoever is capturing those things, they are doing something. So we want to pay some revenue to them. We want to create job and services. So job and services will be created just for the sake of creation, so that the wealth could be distributed. Exactly. Right? Believe me, for this particular model, we can generate so many, cottage industry around the place. Most of the people in that particular place will get job in and around that cooperative, because it will not just have farming, the main business, but like processing the food, and आजकल आपने देखा होगा कि फिर से जो है ना ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज्यादा प्रचलन चला है पूरी दुनिया में, एंड ऑर्गेनिक फूड कॉस्ट एटलीस्ट 3 times more than
नॉर्मल फूड, और जो भी आप फूड आइटम नॉर्मल होता है और एक ऑर्गेनिक होता है, उसकी कॉस्ट में एटलीस्ट 3 टाइम्स का डिफरेंस होता है। और आज के जमाने में लोग इतने मॉडर्न ये जो हैं। देखिए देखिए देखिए, ये जो डिस्टॉर्शन है, इट इज ए डिस्टॉर्शन बिकॉज इट इज इन शॉर्ट सप्लाई। इसकी क्रेज बढ़ रही है। जब जो है आप जो है हर्बल की प्रोडक्टिविटी डालेंगे और जब उसमें आप फर्टिलाइजर फैक्ट्री डाल देंगे जो नेचर से मुफ्त में जो है ना खींच के वो काम करेगा, आप साथ में जो है ना रेन और वाटर हार्वेस्टिंग के फंडे डालेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर ज्यादा रहेगा। फिर आपका जो 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 ड्रिप इरिगेशन वगैरह है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो है ना बाय यू आर टेकिंग आउट द वाटर, you are helping out the cycle. If you could expedite the rate of getting water inside, and then you can have that higher rate of water taking outside also. So I mean that kind of, I mean, now from scarcity mentality we can go to the mentality of the abundance कि कम नहीं है भाई, आपको इसमें क्यों कोताही करना है, जितना चाहिए उतना मिलेगा आपको। Why you want to have the drip irrigation? We want to have that higher degree of the humidity so that our microbes can grow at the faster, and microbes grow करेंगे तो वो nutrients खींचेंगे, हमें nutrients के लिए जो है ना उसकी जरूरत नहीं होगी, नंबर 1। and इस तरीके के जो grains होंगे they are less जो है ना likely to be affected by any pest, so they will be pest resistant. Now we are having the microbes who can take care of the pest also. So instead of having the chemical pesticide, we will be having the microbe-based system. Even your neem and those kind of the things, they can be also be used, which will be serving as a fertilizer, which will be serving as a pesticide also. So a number of the things could be done. Now, rather than that every person is doing this, there could be cottage industry which will be making use of the local material and will be producing this. And not only producing it, let it be a cooperative fund kind of the things, that person should go and do it free of cost. Right. At the last जो है ना उसका share should be calculated and they should get it, something like that. Yeah. And the person those who are in a partnership, then they will be that way. The person those who are in service alone, then they can get the remuneration in the form of the service. But everybody will be very gainfully employed. And this journey will take us from the scarcity mentality to the abundance. मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि नेचर ने केवल अबंडेंस पैदा की है, और जब हम नेचर की अबंडेंस की बात करते हैं तो मैं उस फिनोमेना पे भी जाता हूँ जिसने हमें और आपको पैदा किया है। अल्टीमेटली वी आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। Now my question is to that, and that imagine that scenario, the sperm were also in abundance and ovum were also in abundance, and यदि एक से ज्यादा फर्टिलाइज हो जाता है तो जो है ना ट्विंस पैदा हो जाते हैं, राइट? सो आई एम सेइंग कि जो गॉड ने जब हम और आपको क्रिएट किया है वो भी अबंडेंस में ही पैदा किया है, स्कैर्सिटी में पैदा नहीं किया। अब देखो पानी की बात करिए आप, पानी जो है ना अंडरग्राउंड है, ओवर ग्राउंड है, ओशन में है, ग्लेशियर में है, और हम सब लोग भी वाटर बॉटल है। हम उस अबंडेंस को जो है ना स्कैर्सिटी में कन्वर्ट करके बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट टाइम हैज कम दैट लेट द अबंडेंस टू स्टे एज ए अबंडेंस। हमारा माइंडसेट बदलना चाहिए। जो बिजनेस जो है स्कैर्सिटी क्रिएट करके जो करते हैं वो ठीक वाली बात नहीं है। एक्चुअली पानी की इंडिया में प्रॉब्लम पता क्यों हुई है? इवन मैं आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट मैंने देखा मेरे गांव में भी कम से कम 3 तालाब होते थे। मेरे गांव में 3 तालाब होते थे। आज की डेट में उस गांव में एक भी तालाब नहीं बचा है। तो जब वाटर बॉडी नहीं होगी, जो पानी आ रहा है, जो बारिश हो रही है, वो पानी पूरा बह के जो है ना चला जाता है, सीधा नदियों में बह जाता है, नदियों से समुद्र में चला जाता है। तो वो इस वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। नहीं, अब ग्राउंड वाटर की बात कहें तो हम जो है वाटर बॉडी जो ऑलरेडी है उनका जो है गहरीकरण का जो है एक सोशल कल्चर पैदा करें, राइट? अब जो है कई बार क्या होता है कि तालाब, जैसे मान लो भोपाल है, तो भोपाल में जो फॉरेस्ट एडजॉइनिंग एरिया है वो कहेंगे नहीं नहीं यहाँ मत खोदिए। अरे दुष्टो, यदि खोदेंगे तो सामने वाले को मिट्टी मिलेगी, उसे मिट्टी चाहिए, और आपको जो ना गहराई मिल रही तुझे गहराई चाहिए। लेकिन ये दुष्टता तो जो ना मतलब
सिस्टम में दुष्टता भरी हुई है ना। हाँ, मतलब जो है बाय टेकिंग दैट सॉइल यू आर रियली हेल्पिंग आउट ए कॉज, बट वो एग्जैक्टली। पर्सन सिर्फ इसलिए अपनी चौधराहट बताने के लिए कि साहब मैं इसका ऑनर हूँ, मुझे मैं कस्टोडियन हूँ, तो मैं इसकी ऐसी कब तैसी करने की जिम्मेवारी मेरी है, इसको इम्प्रूव करने की मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और उसको ही गहरीकरण कराने के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करके उसमें भी स्कैम करेगा। मतलब हर जगह स्कैम करने के तरीके खोजने का जो है ना एक मेंटल एटीट्यूड बन गया है। इस मेंटल एटीट्यूड से हमें बाहर जाना ही होगा। नाउ लेट्स कम बैक टू द होल थिंग। तो हमें वाटर को भी वो करना पड़ेगा। और हमारे वाटर की दो प्रॉब्लम है, नंबर वन पॉल्यूशन एंड सेकंड इज द क्वांटिटी एंड गोइंग डाउन। हमें इन दोनों पे साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ेगा। हमें पॉल्यूटेंट्स को जो है ना बाहर से हटाना पड़ेगा। तो पॉल्यूटेंट्स को हमें वे ऑफ लाइफ से हटाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे दिमाग में हमेशा बात आती है, आई वाज आईजी सीआरपीएफ, राइट, आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ कश्मीर, राइट। वहां पर जो है अमरनाथ यात्रा में हम लोगों ने माइक्रोब्स का कुछ यूज किया था, राइट। और जो उसमें जो संडास बनाई गई थी उसमें हम उस माइक्रोब कल्चर करके और उसमें डालते रहते थे। और जो ना गंद की प्रॉब्लम थी ना कोई की प्रॉब्लम थी। तो हम हार्पिक की बजाय माइक्रोब का कल्चर क्यों ना लाएं। देन हम उससे जो है ना उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करें, अभी जो गंद क्रिएट हो रही है, और हम उसको जो है मीथेन में कन्वर्ट करें जिससे हमको गैस भी मिलेगी। तो हर चीज को योर एस्क्रीटा इज ए बिग एसेट, हमने उसको समस्या में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पहले उसको समस्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम जो है ना ये फालतू के जो है विज्ञापन देख के साहब हार्पिक से जो है ना 2 मिनट में संडास साफ हो जाती है। आई एम सेइंग माइक्रोब कैन क्लीन इट इन अ बेटर वे। अच्छा, इसमें जो है रामदेव बाबा ने भी whether we like it or not, he has जो है ना really his team और जो बालकृष्ण जी है, he is having understanding about lot many things. His understanding or understanding where or knowledge wherever it is sitting, it has to be now recapitulated. और हम जो है ऐसे एक्सट्रैक्ट का जो है ना आई एम 200% श्योर, यदि हम इन लोगों को कंसल्ट करेंगे और लोगों को कंसल्ट करेंगे तो ऐसे हर्बल जो है ना वो होंगे और उसमें हम माइक्रोब भी डाल देंगे तो जो गंध है वो खत्म हो जाएगी। आपकी जो है ना टॉयलेट्स स्पार्कलिंगली क्लीन्स होंगी। एंड देन जो है आपको जो एंड रिजल्ट जा रहा है इट विल बी हैविंग वेरी रिच मिनरल्स। तो जो गटर के पानी से हम जो सब्जियां उगाते हैं, जो लोग जो कार्सिनोजेनिक हो रही हैं, वो जो गटर के पानी से जो कुछ भी उगाएगा वो सोना होगा। now the same problem we have converted into the asset, right. So the integration of crime-free Bharat and this philosophy will go a very long way. And what I feel that all people, all scientists, everybody should come together with the crime-free Bharat. And इन ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ हम काम करें और उसको एसेट में कन्वर्ट करें। तो जो अपन पहली बात है कि हम एक स्टडी ये करें, क्योंकि दिस विल बी ऑलवेज, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी हमारा रिक्वायरमेंट क्वांटिटी का बढ़ेगा। बिकॉज अब आप लोहा पैदा नहीं कर रहे हो, आप सोना पैदा कर रहे हो, आप ग्रीन पैदा नहीं कर रहे हो, आप जो है ना हेल्थ पैदा कर रहे हो, राइट। Looks like some connection issue. Yes, let's wait for some minutes. हेलो Hello.
Yeah, there was some internet related issues on my side, so I feel ki now it should be working, right? Yeah, it is. Yeah. Yeah. Basically बिजली चली गई है, so I have to switch over to the mobile network basically. Okay. So what I am saying कि इसको हम codify करें. एक तो हम ये कैलकुलेट करें कि हमारा डिमांड क्या होगा और हम डिमांड को जो है उसमें कन्वर्ट करें, मतलब बेसिकली इन एस्टिमेट्स. देन एक हम प्रोडक्टिविटी को रेगुलरली कैप्चर करते रहेंगे, सो दैट वी शुड नो हाउ मच लैंड टू बी रियली अलॉटेड फॉर दैट पर्पस. एग्जैक्टली. नाउ देयर इज अ नीड ऑफ ए बैलेंसिंग कि कितनी जमीन किस चीज में जाना चाहिए और कहाँ की जाना चाहिए, right? Exactly. That's the main purpose. Actually, I thought this idea. I am having solution for it. Huh? Sanjeev ji, I am having a ready-made solution downloaded from the Cosmos. I am saying there's something very miraculous happening, right? So that's why I am saying कि let it be captured and इसको एक document में भी अभी fast अपन इसको convert करें. इसमें what we thought of कि let there be app, right? ऐप में ये जो भी डाटा है कि कहाँ पे क्या चीज पैदा होना चाहिए, उसका जो है ना प्रॉफिट एलिमेंट कैलकुलेशन वगैरह भी हो सके, और उस जगह पे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो सिस्टम पार्टिसिपेट करे. तो जैसे एज्यूम करिए कि मान लो मैथ्यूसन गुप्त ने एज ए फार्मर लॉग इन किया थ्रू दैट माई ऐप, राइट? दैट इज CFB एग्रो ऐप. अब CFB एग्रो ऐप जो है द मोमेंट मेरी आइडेंटिटी से वो मेरी लैंड को पहचानेगा डायरेक्ट. उसके पास जो है ना माइक्रो डाटा अवेलेबल है आपकी लैंड के, मैथिलीशरण गुप्त की लैंड के माइक्रो डाटा जो है ना ऐप के पास है. सो वो आपकी पीस ऑफ लैंड को दिखाएगा, राइट? कि दिस इज योर पीस ऑफ लैंड. एंड वो कहेगा कि इस समय ये चीज आप बो सकते हैं. वो सब ऑप्शंस को प्रेसिपिटेट करके वो सामने दिखा देगा, राइट? एंड इट विल गिव द कैलकुलेशन आल्सो कि आप किस चीज को बोगे तो उससे क्या जो है ना एस्टिमेटेड आपको जो है ना फायदा होगा, राइट? तो वो कैलकुलेशन भी बैकएंड इंजन करके देगा, उसको कुछ नहीं करना है, राइट? नाउ ही कैन टेक ए डिसीजन द मोमेंट ही डिसाइड्स कि हमें जो इस क्रॉप के लिए जाना है, तो वो एक उसी में एक दूसरी चीज क्रिएट हो जाएगी. एक मीटर विल ऑन कि अभी तक कितने लोगों ने क्या डिक्लेयर किया है. हम इसको ये चीज ब्यूरोक्रेसी को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी फिर उसमें साला रेंट सीकिंग बिहेवियर आ जाएगा. वी वांट कि let the farmer should be the owner of their choice. इसको थोड़ा सा हल्के एक मिनट संजीव. इसमें इसको हम थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल वे में भी कहना चाहते हैं. हमें थोड़ा सा बहुत जरूरी है ये स्पिरिचुअल एलिमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट कॉस्मिक डाउनलोड. देखिए ह्यूमन अकेला है जिसे ईश्वर ने चॉइस मेकिंग डिसीजन दिया है, राइट? हम लोगों ने ऐसे सिस्टम क्रिएट किए कि आपकी चॉइस शिफ्ट कर गई है, कोई दूसरा आपके लिए डिसीजन कर रहा है. आई वांट टू से नहीं, हम आपको ज्ञान देंगे, वो भी आपको बिना कोई ज्ञान एक्वायर किए हुए. यू जस्ट मेक चॉइसेस. गॉड भी ने भी आपको चॉइस करने का मौका दिया है. सो आई वांट दैट फार्मर शुड मेक ए चॉइस. उसको मान लो हमारी लैंड कहाँ है, उसकी क्या जो है ना ह्यूमिडिटी है, क्या सॉइल कंडीशन है, एंड इट विल बी अपडेटेड. मतलब चूंकि अपन एक पीछे बैकएंड पे जो है ना सर्विसेज, ग्रामीण सर्विसेज क्रिएट करेंगे, तो वो डाटा भी रेगुलरली कैप्चर्ड एंड अपडेटेड रहेगा, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आजकल वेदर की हर इंफॉर्मेशन जो वो डायरेक्ट आती है वो भी अवेलेबल है. तो दोनों का मिला के बैकएंड इंजन विल कैलकुलेट कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास ओपन है. देन हर ऑप्शन के लिए चूंकि उसकी आपकी लैंड का एरिया भी मालूम है, so it will calculate that what will be the financial value for you. So you can make a decision of that. Let what should be grown should be decided by you. जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे पल्स बोना है, बिकॉज पल्स में आपको ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है, राइट? सो द अनदर मीटर विल स्टार्ट कि साहब देखिए ये जो अभी तक के डिक्लेरेशन के हिसाब से हमारा टारगेट है कि हम इतने लाख जो है ना हेक्टेयर जो है इस पल्स के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, राइट? आपके डिसीजन को मिला के पहले जो है ना इतना डिक्लेरेशन है और तुम्हारा डिक्लेरेशन मिला के इतना हो गया है, एंड इट इज स्टिल इन ग्रीन. इट मींस यू कैन मेक ए डिसीजन. अब अज्यूम करिए कि डिसीजन होते होते अब वो रेड एरिया में पहुंच गया,
इसका मतलब है कि वी आर क्रिएटिंग समथिंग, देन प्रोजेक्टेड सप्लाई से ज्यादा सप्लाई पैदा कर रहे हैं. नाउ हियर द ऐप वुड बी हेल्पिंग द फार्मर टू टेक ए बैलेंस डिसीजन. ही विल से, हे, I advise you not to go for this crop. You can go for the alternate things, which so you try the other options open to you. But it will say still you can make a choice. The moment you exercise your option against the app, then your right to get MSP will not be there. Right, exactly. So you have to forego. So you are creating incentive for guiding in decision making. तो एक तो आपने उसको decision making के फंडे दे दिए, दूसरे आपने जो है उसको गाइडिंग प्रिंसिपल भी दे दिया इन टर्म्स ऑफ द इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव, कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू लूज दिस मच एंड स्टिल यू आर ए चॉइस मेकर. मतलब यदि आप ज्यादा पैदा करना चाहते हैं एट द कॉन्शियसली नोइंग इट विल बी हार्मिंग यू, देन योर ग्रेन विल नॉट बी सोल्ड by at the MSP will not be a promise. And here MSP will be 3 times or 2 times of MSP. क्यों? क्योंकि वो सोने के हिसाब से MSP पुनः कैलकुलेट होगी. Right. So the MSP will also be now a different kind of MSP, right? Now that person, I presume कि जब उसको देखेगा तो he will be going for the other options open to him. Now this is one support. The second, जैसे ही आप जो ना जैसे जुताई करना चाहते हैं, राइट, तो आपके पास यदि अपने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यदि वो कोऑपरेटिव फंडा और जॉइंट वेंचर वाला फंडा हो गया तो फिर तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, सामने वाला आके जो ना उसको जोत जाएगा. स्टिल जो है द डिसीजन मेकिंग वी वांट टू बी टेकन, क्योंकि वो हर इंडिविजुअल को वो कर रहा है, तो उसका इंडिविजुअल नॉलेज, इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से उसके डिसीजन वही लेगा. बाकी चीजों के लिए ज्वाइंट वेंचर है, राइट. डिसीजन मेकिंग उसके पास ही रहेगी. ठीक है. नाउ अब अज्यूम करिए कि वो जो ना उसकी जुताई नहीं हुई, क्योंकि वो हर चीज को कैप्चर करेगा. अब उसे मालूम है कि आपने ये सीड जो है ना ऑप्ट किया है. नाउ द CFB विल इंश्योर कि उसका बेस्ट सीड आपके एरिया के लिए है, वो आपके डोर स्टेप पे पहुंचाया जाए. एंड इट डज नॉट मैटर कि आप परचेज करने की स्थिति में है कि नहीं, क्योंकि वो आपसे पैसा मांगेगा ही नहीं. पैसा आपका जब आपका क्रॉप आ जाएगा तो उसमें से अपने आप ऑटोमेटिक शेयर उसका पहुंच जाएगा, जो जितना आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट हो जाएगा. एंड द सिस्टम विल इंश्योर you get the best grain, best seed at the reasonable price and right at your doorstep and at the time when it is needed. Right? अब जो है यदि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो पहले तो आपसे एडवांस में ऑप्शन ले लेगा कि नहीं मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, राइट. यदि आपके पास कैपेबिलिटी है और आप खुद अपना करना चाहते हैं, राइट, मतलब सोइंग करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट बिकॉज यू आर हैविंग सम कैपेबिलिटी एंड यू आर हैविंग योर ओन कैलकुलेशंस, राइट. तो आप जो काम खुद करेंगे उसका इक्विवेलेंट जो है ना आपके फेवर में वो कैलकुलेट कर देगा. ठीक है ना. सो दैट इफ यू आर डूइंग इट, इट मींस उस एक्टिविटी के लिए आपको उतना जो है, चूंकि आप उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, राइट. नाउ यदि अज्यूम करिए कि आपने पहले से डिक्लेयर नहीं किया कि जुताई और ये सपोर्ट आपको चाहिए, राइट, तो सिस्टम ये मालूम है कि आपने जुताई नहीं की है, क्योंकि आप द मोमेंट यू विल डू योरसेल्फ जुताई आपको डिक्लेयर करना है, दैट इज योर ऐप. अज्यूम करिए कि आपके जुताई का समय निकल रहा है तो सिस्टम विल अप्रोच यू, हे यू हैव नॉट, आपने जुताई नहीं की, प्लोइंग नहीं की हुई है, तो यू नीड सपोर्ट. द मोमेंट से यू somebody will come and will plow your field. आपको सीड पहुंच ही गया है, सीड को कोई आके बहुत अच्छे ढंग से बो देगा. हर्बल जो फर्टिलाइजर्स है जहां कहीं भी पैदा होगा, इट विल बी प्रोड्यूस इनफ क्वांटिटी एंड विल बी आपकी जगह के लिए जितना चाहिए उतना जो है ना आपके पास पहुंचेगा, राइट. इन सब चीजों को करने के लिए देयर विल बी मेनी स्टार्टअप्स व्हिच विल बी वर्किंग एट द बैक एंड. उस स्टार्टअप में वहीं के लोकल बच्चे एम्प्लॉयड होंगे, so it will be creating a lot of job and services. Exactly. And then they will be trained to do that job. So it's not only the खाद, वो खाद कैसे अप्लाई करना है, they will come with that knowledge also. Exactly. अब हमारा इसमें एक आइडिया है कि इंडिया में जो बड़ी प्रॉब्लम और होने लगी है, वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ह्यूमिलिटी लोगों के स्वभाव से गायब हो रही है. उद्दंडता जो है, चूंकि चारों तरफ उद्दंडता परोसी जा रही है, तो उसके स्वभाव और नेचर में उद्दंडता आती जा रही है.
now we have to handle that uddandata also. So what I am saying कि जो ऐप है that will capture your humility also. तो जो आपको सीट देने आ रहा है, उसने दादा राम राम कहा कि नहीं कहा, आपको रिस्पेक्ट दिया कि नहीं दिया, उसने जो है ना, हालांकि वो कर रहा है लेकिन फिर भी आपको ब्रीफ करेगा। यदि मान लो आपका दरवाजा बंद है तो वो दरवाजा उसने पोलाइटली जो है ना खोला और बंद किया। उन ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को भी कैप्चर करेगा और उसको जो है कैप्चर करके इट विल बी कैलकुलेटेड एज सर्विस इंडेक्स, और जो उसको पेमेंट मिलेगा स्टार्टअप को दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट। और जो इसको लेकिन जो कैप्चर कर रहा है इसको पूरा पैसा मिलेगा, पूरा पैसा देना होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंडियन मेंटेलिटी अपन को मालूम है, नहीं तो हम पैसा बचाने के लिए झूठा मोटा उसको कम ग्रेडिंग दे देंगे। तो वो झूठा मोटा कम ग्रेडिंग ना मिले इसलिए आपको तो पूरा पैसा करना पड़ेगा। जो डिफरेंस है दैट विल गो फॉर द वेलफेयर फंड ऑफ दैट कम्युनिटी। तो the CFB would be in position to will have the enough fund for doing the welfare activity also for that people, because humility के लिए करने के चक्कर में उसके पास एक्स्ट्रा फंड पहुंच रहा है और वो उस एक्स्ट्रा फंड को किसी दूसरे के लिए यूज नहीं करेगा। इट विल यूज फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस ओनली जहां पे कि वो सेविंग आई है। तो इस तरीके का जो है, एंड देन अब अज्यूम करिए कि सब कुछ हो गया, पानी वानी सब कुछ हो गया, अच्छा आपकी क्रॉप आ गई। अब क्रॉप हार्वेस्टिंग में भी द सपोर्ट विल कम अगेन, द जॉइंट वेंचर कॉस्ट सर्विस है वो। तो इंडिविजुअल यदि चाहता है कि उसके पास अपनी कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी को यूज करना चाहता है, बिकॉज दैट मच जो है ना ही वांट के हमको इतना एक्स्ट्रा और मिल जाएगा क्योंकि मुझे कैपेबिलिटी भी है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अदरवाइज जॉइंट वेंचर सर्विसेज विल कम एंड विल डू दैट जॉब फॉर यू, सो व्हाटएवर वे, बट यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड। अब जो है ना प्रोड्यूस हो गया है, प्रोड्यूस को आपको किसी मंडी वंडी में नहीं बेचना है, राइट। उसके लिए देयर विल बी वेइंग मशीन, थिंग्स दैट एवरीथिंग। कोई नेगेटिव हैंकी पैंकी परमिटेड नहीं होगी, आप कोई मिलावट नहीं कर सकते हो, बदमाशी नहीं कर सकते हो। इसका एंड इट, जब आप बदमाशी नहीं कर सकते हैं, इसमें क्राइम फ्री भारत के कॉन्सेप्ट घुसेंगे, राइट। वो आपको बदमाशी नहीं करने देंगे। यदि बदमाशी करेंगे तो कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि वी वांट टू टेक अवे द वेरी नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, राइट। एंड उसमें क्राइम फ्री भारत के कॉन्सेप्ट बहुत सारे काम आएंगे, क्योंकि वो जो है ना, जैसे आप बदमाशी करोगे उसको कैप्चर कर लेगा एंड देन इट विल टेक यू फॉर द प्रोसिक्यूशन। सो मे नॉट बी एग्रीकल्चर में प्रोसिक्यूशन, वो आईपीसी के क्राइम नहीं लगेंगे, उसमें जो है ना मोटर व्हीकल वायलेशन टाइप के क्राइम होंगे, जहां की कंपाउंडिंग फीस होगी। तो आप वहां गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? धन के लिए कर रहे हो, तो वो आपको उसके जितना आप धन की गड़बड़ी कर रहे हो उसके 10 टाइम्स आपकी पेनल्टी होगी, और जो कैप्चर करेगा उसको जो है ना 50% मिल जाएगा। तो वो क्राइम का मॉडल उसमें यूज होगा, रूल वायलेशन का मॉडल यूज होगा, बट इट विल नॉट बी द आईपीसी, इट इज नॉट द पुलिस, it will be more of a compounding fees. So we will be in position to modify their behavior. Now this will be the best concept. आपका जैसे मिल्क है, तो मिल्क में हमें कितना मिल्क प्रोड्यूस करना है? अभी संजीव जी, I don't know whether you know it or not, India is consuming the 3 times than what it is producing. It means 2/3 of the milk is of the chemical origin. एक अभी जीटीवी ने एक इसमें एक वो किया था, और उसमें उसने कहा कि साहब यदि आप इस केमिकल से प्रोड्यूस मिल्क, जो कि टेस्टिंग में है, उसमें फैट कंटेंट से लेके हर कंटेंट इज कंपेरेबल आया है, राइट। मतलब केमिकल से बनाए हुए दूध का जो है ना फैट कंपोनेंट एंड प्रोटीन कंपोनेंट एटसेट्रा, एंड द टेस्ट लेबोरेटरी इट इज फाउंड कंपेरेबल विद द ओरिजिनल मिल्क। तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, इसका मतलब हमें क्राइम के दूसरे फंडे लगाना पड़ेंगे, जैसे इस तरीके का कार्सिनोजेनिक मिल्क पैदा ना हो पाए, राइट। वो दैट वी विल बी इन पोजीशन टू डू। आई एम हैविंग द आइडिया हाउ टू डू इट, एब्सोल्युटली नो इशू। नाउ जो है, आप यदि उस कार्सिनोजेनिक केमिकल प्रोड्यूस मिल्क का यदि आप यूज करते हैं, तो उसी उसमें वो कुछ साइंटिस्ट के पास गया, तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि साहब यदि इस मिल्क को आप 4 साल तक लगातार लेते रहेंगे तो 87% चांसेस हैं कि यू विल सफर फ्रॉम द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। मतलब 87% पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। तो हम, ये हाई टाइम है कि कैंसर होने से हम रोकें। हम अपने वॉक के हर लाइफ स्टाइल से जहां भी केमिकल गायब करना है, वो सब गायब कर दें। इवन कॉस्मेटिक्स,
कितना हैवी डोज ऑफ केमिकल हम यूज कर रहे हैं। अरे इतनी अच्छी हर्बल की चीजें हैं कि आपके चेहरे का ग्लो जो है ना देखने लायक बनेगा, सही बात। राइट? सो व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट? व्हाई दीस कॉस्मेटिक थिंग्स व्हिच आर कॉस्टली? हम हर्बल की जो है ना कॉस्मेटिक चीजें बनाएं। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे जो है ना कुछ एक प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि साहब आपको वो रूट कैनाल सर्जरी करना पड़ेगी। उसी समय आई गॉट शिफ्टेड टू द दंत कांति रामदेव महाराज बहुत की। अच्छा है। मैं तो अरे उसका वो जो द नीड ऑफ द रूट कैनाल सर्जरी डिसअपियर्ड। अब एक चीज और बताऊं, मुझे जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे इसमें मस्से बहुत आ रहे थे, अच्छा राइट? तो उनकी जो सेविंग क्रीम है, उससे उसको हमने यूज करना चालू किया, तो मेरे मालूम पड़ा कि वो मेरे मस्से गायब हो गए। फिर मुझे मस्से सिर में भी आ रहे थे, तो हमने उसी सेविंग क्रीम को सिर में लगाया, तो मालूम अच्छा। पड़ा कि सिर से भी जो है ना मस्से गायब हो गए। अरे वाह। सो जिस चीज को एलोपैथी कह रही थी कि साहब ये तो जो है वायरस है, और इसको वो सिर्फ जलाते थे, राइट? तो उस चीज को जो है इतने नेचुरल ढंग से, तो इसका मतलब ये है कि हर्ब्स में इतनी ताकत है, हम उस नॉलेज को असिमुलेट करके जनता के लाभ के लिए पहुंचाएं। एंड लेट्स टॉक इन अ वेरी एग्रेसिव फॉर्म, कि चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो वे ऑफ लाइफ हो, लेट्स रिमूव केमिकल फ्रॉम आवर लाइफ। केमिकल की जगह हम नेचुरली प्रोड्यूस उसी तरीके की चीजें लेके जाए, और लोगों को ना केवल फूड ग्रेन में, ना केवल मिल्क में, ना केवल हनी में, बट लेट्स हेल्प देम आउट इन इंप्रूविंग देयर लिविंग स्टाइल। अब ये बड़े काम में बताइए, यदि ये काम जो है ना यदि सीएमपी करता है, that will change India. कितना बड़ा लाभ का सौदा होगा। It will change India because it will actually bring so many people out of poverty. इतनी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आजकल हो रहे हैं, स्पेशली कैंसर इतना फैल रहा है, इफ पीपल स्टार्ट टेकिंग प्योर इंग्रेडिएंट्स, गुड फूड, ऑर्गेनिक फूड, सोचो लाइफ कितनी कितनी चेंज हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, and it will not be in India, we will be in position to influence it globally. Exactly, yeah, definitely. आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जो है ना पहले मतलब मुझे बहुत लेट पता चला बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं। I fell in love with those products, so good actually, especially दंत कांति मंजन और उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर्बल वाले, they are really good. आप जो है उसका जो है उन्होंने एक जो क्लींसिंग के लिए वो गाय के मुंह में थोड़ा बहुत कुछ मिला के बनाया है, इट इज मार्वलस। अच्छा, मतलब वो इतना अच्छा है, तो और मुफ्त में है देखा जाए तो, मतलब वो बाबा जो ना जितना भी आपसे पैसे ले रहे हैं, देखा जाए तो उसकी प्रोडक्शन में तो कुछ पैसा खर्च नहीं होना है। राइट। नाउ इफ वी आर एंड गाय को यदि हम जो है ना दूध की मशीनरी की बजाय यदि हम गोबर की मशीनरी माने, वैसे तो मशीनरी ना माने क्योंकि माता को माता रहने दे, मशीनरी क्यों कहा जाए, ठीक है ना? लेकिन एक मिनट के लिए चूंकि मशीनरी कहने का बड़ा शौक है, तो थोड़ा देर के लिए कह लेते हैं, ठीक है ना? तो हम उसको गोबर प्रोडक्शन मशीनरी मान के, तो जो अभी प्रेजेंट वे ऑफ लाइफ है, जिसमें कि गाय की जो है बेसिकली जैसे वो दूध देना बंद करती है, उसकी लाइफ जो है ना बिकम्स वेरी बैड, वो जो है अबेंडेंट पड़ी हुई है। हम उसको शहर में क्यों रख रहे हैं? हम उसको प्योरली फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में, जहां पे कुछ खाने के लिए हर्बल चीजें मिले, न्यूट्रिशियस चीजें मिले, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हम उसको हवन जो है ना का भी वो दें, हम उसको जो है ना मंत्रों का भी दें। I am very sure this Haman and Mantra, I wish that our people should conduct a research on that, but I am having a cosmic download which is saying it will have the effect on the micronutrients of the honey, it will have the micronutrients of the milk also. I'm not saying ki let's go superstitiously. I am saying let that element should be identified and should be brought as a form of a research. हम अपने देश को जो ये झूठे विज्ञापन वाले हैं, जिन्होंने जो है ना बड़े बड़े जो है ना लोगों को, आज चाहे क्रिकेटर हो, चाहे कोई हो, चाहे जो है ना सिने एक्टर हो, वो इनके
एडवर्टाइजमेंट करके अपनी जो सेलिब्रिटी वो है उसको भी बेच रहा है, एंड इन द प्रोसेस बेसिकली ही इज बिकमिंग द पार्टनर इन बिफूलिंग पब्लिक. एग्जैक्टली, बट बिलीव मी थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया. आपने देखा होगा जो हिंदुस्तान लीवर है, कोई सोच सकता था हिंदुस्तान लीवर कंपनी को एक कोई बाबा रामदेव टाइप का आदमी टक्कर देगा? इतने यहाँ तक कि बाबा रामदेव की जो कॉर्पोरेशन है हिंदुस्तान लीवर से आगे निकल गई है. कैन यू बिलीव वेरी दैट? ट्रू. एंड ही इज द ओनली फेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. कोई किसी एक्टर से एडवर्टाइजिंग नहीं कराता, किसी से नहीं कराता. नहीं, अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना उनका. हाँ, बिकॉज प्रोडक्ट इज गुड. सो आई एम एवरीबॉडी इज. आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे जो स्टोर्स होते हैं, जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं इतने जल्दी खत्म हो जाते हैं कि मतलब बाद में So now very true. इसका मतलब है कि यदि कोई चीज अच्छी है तो सोने के भाव में बिकेगी, नंबर 1. नंबर 2, वो समय रहते खत्म हो जाएगी. तो नेचर ने तो हर चीज अबंडेंस में पैदा की है, तो हम लोगों का आवश्यकता, यदि हम उसको पार्ट ऑफ लिविंग मान लें कि इट इज गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ योर लिविंग, सो यू आर गोइंग टू कंज्यूम, एंड विद द इंक्रीमेंटली वी कैन से कि साहब आज ये है, इसकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी तो अगले साल हमको इतना चाहिए होगी, एंड उतनी चीज हम पैदा करें. यदि वो चीज जो है हर्बल है या किसी जड़ी बूटी से आ रही है या किसी पेड़ से आ रही है और उतने पेड़ नहीं है, तो हम एंटीसिपेटेड संख्या में सैपलिंग पैदा करके वो पेड़ उसी एनवायरनमेंट में लगाएं जहां पर कि इट इज गिविंग द बेस्ट वैल्यू. बहुत सारे जंगली फ्रूट्स हैं जिनको जो है ना आप करिए, उससे बहुत सारी सफाई, ये वो, इवन वी कैन हैव द बेटर जो है ना डिटर्जेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ द हर्बल जो है ना प्रोड्यूस रादर देन जो है ना गोइंग फॉर द केमिकल प्रोड्यूस. एग्जैक्टली. हालांकि ये सब जो है ना, चूंकि इन लोगों की पॉकेट बड़ी है, तो ये फर्जी जो है एडवर्टाइजमेंट करके अपनी बात डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्य होता है. यदि सत्य को सत्य के रूप में यदि पेश किया जाए तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट काम नहीं आने वाला है. आप ऐसे देखो, जितनी भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने कितनी कोशिश करी बाबा रामदेव को नीचे गिराने की. they are pumping lot of money actually. They are pumping money in advertisement. They are pumping money to the bureaucracy. मुकदमा बना के बंद कर दो इसको. ब्यूरोक्रेसी एंड लीडर्स, जो तुम्हारे नेता हो. वेरी ट्रू. बहुत कोशिश करी लोगों ने, लेकिन उसका प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि लोग जो है ना उसकी एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, ये बताओ संजीव जी, ये नेता आए कहाँ से? कैसे ये नेता कहाँ से आए हैं? हम ही लोगों ने बनाया. तो ये नेता जो है, जिनका चरित्र खराब है, जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर हैं, ये क्यों जीत रहे हैं? उसका रीजन ये है कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा जो कल्चर डेवलप किया गया ना, उसमें क्या है, लोग जो है ना 2 चीजों के बहुत भूखे हैं इंडिया में. एक पावर और एक पैसा. 2 चीजें उनको चाहिए रिगार्डलेस. हर आदमी ना तो पावर कंसिस्टेंटली रहेगा, ना पैसा रहेगा. और आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की कि मरने के बाद पैसा आप ले जाएं, और बल्कि आपको शमशान घाट में आपके शरीर का एक धागा भी निकाल दिया जाता है, वो भी आपको ये कन्वे करने के लिए दिया जाता है कि इवन यू कैन नॉट टेक ए थ्रेड विथ यू. एग्जैक्टली. तो हुआ क्या कि एक तो हमारा देश हजारों साल तक गुलाम रहा. पहले मुगलों ने, मुस्लिम इन्वेडर्स ने, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 200 साल तक. तो उनको लगता था कि जो भी राज करने वाला है, जो भी मतलब सरकार में है, वो एक अजीब सा वो है लोगों के अंदर अट्रैक्शन पावर के लिए. क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि जो सरकारी जो बाबू या सरकारी या अधिकारी या तुम्हारे सरकार में बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं, उनकी जो पावर होती है तो लोगों को बड़ा फैसिनेट करती है, इंडिया में अट्रैक्ट करती है. यूएस में वो चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती हैं. यहाँ पे आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे
ऐसा मैंने कोई भी इंसान को नहीं देखा कि जो ना कोई भी जॉब इसलिए करता है क्योंकि उसमें पावर है. दे डू दैट वर्क बिकॉज दे लाइक इट. और अगर मान लो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे होगा वो बंदा, अगर उसको वो काम में मजा नहीं आएगा ना, तो वो जाके छोटे से छोटा काम करना शुरू कर देता है. यहाँ मैंने देखा है. यहाँ पे दिस इज द कल्चर ही. क्योंकि वो काम करना चाहता है जिसमें उसको मजा आता है, रिगार्डलेस कि उसमें वो बहुत ज्यादा फैशनेबल काम है या नहीं है, दुनिया क्या सोचती है उस काम के बारे में, नोबडी केयर्स. तो कुल मिला के हाउ वी कैन रियली हेल्प आउट इन चेंजिंग द सिनारियो, क्योंकि मैं ये बात बार बार कहता हूं कि इस देश में जब एक प्यून बनने के लिए साचरित्र होना बहुत जरूरी है, तो देश का कर्णधार बनने के लिए, देश का नेता बनने के लिए, देश की बागडोर संभालने के लिए साचरित्र होना क्यों जरूरी नहीं है. बहुत जरूरी, सबसे जरूरी है. और मैं तो एक एक्सट्रीम पे जाता हूं. यदि इन नेताओं को लगता है कि नहीं नहीं क्रिमिनलिटी जो है ना इज आल्सो एसेट, तो फिर एक क्रिमिनल एक्टिविटी के बोनस मार्क निकाल दें. एक सिस्टम बनाए कि आप यदि 5 मर्डर करके आओगे तो सीधे आईपीएस बनोगे. Then you talk in that term basically. एक्चुअली वही हो रहा था इंडिया में. आपको टिकट तभी मिलता है जब आपको कि आपकी विनेबिलिटी होती है. विनेबिलिटी का मतलब है कि आपने कितने कितने बाहुबली हो, कितने मर्डर किए हैं, कितना आपके पास पैसा है जो अनअकाउंटेड मनी, जिससे कि आप इलेक्शन पे खर्च कर सको. वो क्वालिफिकेशन होती है लोगों की. तो आप सोचो, तो वो तो फिर आदमी क्यों नहीं करना चाहेगा वो क्राइम, है ना. मुझे नहीं मालूम है कि जो मैंने सुना है वो सही है या गलत है, तो आई डू नॉट रियली, मेरी बात से किसी का ये ना माना जाए कि मैं आलोचना कर रहा हूँ. आई एम जस्ट मे बी माई इग्नोरेंस आल्सो, और जो भी बात मैं कहने वाला हूँ वो हो सकता है पूरी तरह गलत हो. लेकिन मुझे ऐसा बताया गया कि मारवाड़ियों में एक कल्चर है कि शादी ब्याह के समय पूछा जाता है कि आप कितनी बार दिवालिये हुए. यदि आप दिवालिये नहीं हुए तो फिर आपसे क्या विवाह करना. अच्छा. आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग. I don't know. But yes, it has been shared by a very responsible person. I'm not very sure, but that reflect कि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दिखाता है. It requires that कि दिवालिया बना है तो उसने वो मनी को साइफन किया हुआ है. वो रियल दिवालिया तो हो ही नहीं. मतलब हेरा फेरी करने में आप कितने होशियार हो, आप कितने वास्तव है. करेक्ट. तो वो वही बताया ना कि हवस, पैसे की हवस जो है ना इंडिया में लोगों में इतनी ज्यादा है कि वो अपनी 7 पीढ़ियों का भविष्य सेव करना चाहते हैं. आई डोंट नो व्हाई. ऐसी हवस दुनिया में मैंने और कहीं देखी नहीं है. अच्छा ये बताइए, उसी इंडिया में ये बात कही है कि उपजे पूत कपूत तो किम धन संचिए, और उपजे पूत कपूत तो किम धन संचिए. राइट. क्योंकि कपूत होगा तो वो उड़ा देगा उसको, और सपूत होगा तो उसे जरूरत ही नहीं है. एग्जैक्टली. राइट. तो ये मतलब इतनी नॉलेज, इतनी विजडम थी अपने कंट्री में जिसकी कोई सीमा नहीं. लोग उसको भूल के ऐसी ऐसी चीजों में इंडल्ज हो गए हैं कि समझ में नहीं आता है कहाँ जा रही है सोसाइटी. एक अलग ही लेवल पे जा रही है. तो आपको नहीं लगता है कि टाइम हैज कम दैट इट इज ए मिड कोर्स करेक्शन, एंड इस मिड कोर्स करेक्शन में हम लोगों की सीधी भागीदारी हो, क्योंकि एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स इट इज टू इजी एंड दैट पर्सन विल नॉट बी डूइंग. तो जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, उस परिवर्तन की आधारशिला हम स्वयं क्यों ना बने. जब हम सोच पा रहे हैं, जब हम उसके लिए इंजन डिजाइन कर पा रहे हैं, जब हम उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पा रहे हैं, जब हम उसके लिए हार्डवेयर डिजाइन कर पा रहे हैं, जब हम इसके लिए तो हम खुद क्यों ना करें. बिल्कुल. एक दिन जो है ना थोड़ा सा और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं. ये जो मॉडल अभी हमने डिस्कस किया फार्मिंग के लिए, क्योंकि ये इंडिया को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकता है. क्योंकि प्रॉब्लम पता है कहाँ से हो रही है. अपना देश में गांव बहुत है, ठीक है. मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है, और जब गांव में उनकी जो फार्म होल्डिंग है वो इतनी ज्यादा कम हो गई है, मान लो 5-5, 6-6 भाई हैं, उनके पास 10 एकड़ जमीन है, तो क्या करेंगे, वो गांव में खा ही नहीं सकते. तो फिर दे आर फोर्स्ड टू मूव टू सिटीज. वो फिर बड़ी सिटी में जाके, क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन तो बैकग्राउंड तो है नहीं, उनके पास कोई ट्रेनिंग है नहीं
कि उनके पास किसी टेक्निकल ट्रेनिंग हो, कुछ कोई क्राफ्ट की कोई ट्रेनिंग हो, जिससे कि वो कुछ अच्छा कर सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वो सिटी में जाते हैं तो क्या करते हैं, दे विल एंड अप वर्किंग एज ए लेबरर। लेकिन आपको जब लेबर का भी काम नहीं मिलेगा, देन दीज पीपल इंडल्ज इन क्राइम आल्सो। तो इसलिए सिटीज में भी क्राइम बढ़ता है और झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं शहरों में। शहर हमारे जो है ना ओवर पॉपुलेटेड, तो ओवर क्राउडेड होते चले जा रहे हैं। और मतलब जितनी भी दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स उस वजह से हो रही है। अगर वो गांव का आदमी, अगर वो गांव में ही रहेगा, अगर मान लो हमारे पास गांव में ही हमें जॉब है, तो मैं क्यों शहर में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। गांव जितनी शुद्ध हवा, गांव जितनी प्योर चीज कहीं मिलेगी आपको? नहीं मिल सकती। देखिए, मैं जो है एक उत्तर प्रदेश के गांव को बिलोंग करता हूँ और और मैं देखता हूँ कि उस गांव में पेड़ ही नहीं है। हाँ, पहले मुझे याद है कि मेरे खुद के घर के आंगन में एक बहुत ही बृहद काय काय जो है नीम का हाँ, वृक्ष हुआ करता था, वो भी कट गया, सब खत्म हो गया। तो आई फील कि द ग्रीनरी इज मच मोर इन ए भोपाल देन इन माई विलेज। एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली। लग रहा है कि इवन जो गांव है उसकी गांव की शुद्धता को भी रिस्टोर करने की जरूरत है। बहुत जरूरत और है। और जो है हमें वाटर हार्वेस्टिंग में प्लांट, न्यूट्रिशनल प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स, देन उसमें फ्लावरी प्लांट्स, एंड उनको एक जगह पे जो है ना ऐसे प्लांट्स को इकट्ठा किया जाए जो वहां के लिए बेस्ट हो, एंड देन वहां पे हम हनी कीपिंग करें। तो जो हनी जिस फ्लावर को लेके जो है ना करेगी, वो उसके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हमारे उस हनी में आएंगे। So let's create the honey which should be a medicinal value. And I am saying कि crime free Bharat, let's crime free Bharat should provide all these revenue. That's why I have conceived the 16th Bharat in that. Because मुझे लग रहा है कि जब तक हम वेल्थ की बात नहीं करेंगे, तब तक भारत जो है अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। यदि हम लोगों में बैठ लाएंगे तो उनकी सोच बदलेगी, उनकी क्वालिटी बदलेगी, उनकी सब कुछ बदलेगी। अभी नेताओं ने इतना बर्बाद कर दिया है। somebody was discussing with me about उत्तराखंड कि गांव-गांव में जो है ना, जो कि देवभूमि कहलाती है, वहां गांव-गांव में जो है ना शराब पहुंच गई है। बताओ हम क्या करना चाहते हैं? क्या धन कमाने के लिए हमें ये घटिया काम करने की जरूरत है क्या? Why we are not really bringing that cultural revolution, bringing that बेसिकली जो भारतीय संस्कारों में, भारतीय कल्चर में जो एक गहराई है, जो एक बेसिकली कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी जीवन पद्धति है। लेट्स रिवाइव दैट जीवन पद्धति। इट इज नॉट ए रिलीजन, इट्स अ जीवन पद्धति। या एग्जैक्टली। तो चलो डिस्कस करेंगे और भी कल। नहीं, मैं जो है ना, आई एम एंटी अवेयरनेस एंड एंटी डिस्कशन मैन। मुझे क्या लगता है कि चीजों को हम वर्किंग मॉडल में इवॉल्व करें और लोगों को परोसें। लेट्स बिकम द क्रिएटर आवरसेल्फ। और यदि ये कॉस्मिक डाउनलोड इधर आ रहा है तो हमारी और नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस कॉस्मिक डाउनलोड को एक वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट करें और जनता को उसका लाभ मिले। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया। ये रिकॉर्डेड सेशन जो करने से we will not lose our thought process. कम से कम we can refer back कि हमने क्या डिस्कस किया था, क्या क्या आइडियाज आए थे, and we can actually provide all those videos to these system analyst जो हम बात कर रहे थे ना उस दिन लास्ट टाइम। तो मैंने एक दो लोगों से बात की है, बट अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला सिस्टम एनालिस्ट से। मेरा सोचता उसमें मेरी उसमें भी सलाह है। मेरी सलाह ये है कि देखिए, you are having a set pattern for the searching talent, right? That is called interview, right? And there is a now, चूंकि जॉब की बहुत मारामारी मची हुई है, तो जॉब मार्केट क्रिएट हो गया है। There are the people those who are providing the services, right? उनके सर्विसेज से हम जो है ना फीड लें और फिर उनको उसी इंटरव्यू में हम ले जाएं, राइट? रादर जो हमारे बच्चे जो इंटर्नशिप वगैरह भी काम कर रहे हैं, उनको भी कह सकते हैं कि they can also apply, right? And after the protraction
right kind of the resource person should be identified, and then he should work 24 hours into 7 for the crime free Bharat. अच्छा, एक जो है ना इसमें हम रेवेन्यू मॉडल वो भी कैलकुलेट करना क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो भी क्राइम फ्री भारत में वैल्यू ऐड कर रहा है उसकी वैल्यू एडिशन शुड बी कम इनटू द मॉडल। और जब क्राइम फ्री भारत जो है ना धन की वर्षा करने की स्थिति में आएगा तो वो रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना उन लोगों के पास भी पहुंचे जिन्होंने इसे बनाने में मदद की है। तो उससे क्या है कि हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन इट विल बी सेल्फलेस की जगह इट विल बिकम सेल्फिश। और हम कह रहे हैं कि आदमी का जो स्वभाव है वो सेल्फिश है, तो हम सेल्फिश को बुरा ना माने, सेल्फिश को वी कैन यूज फॉर मोटिवेशन पर्पस। सो लोग जनरली सेल्फिश को नेगेटिव फॉर्म में ले जाते हैं, और हम उसको सेल्फिश को मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी के बतौर यूज करें तो प्रॉब्ली वी कैन रियली गो अहेड। और हम इसमें क्या करें, देखिए हम इसमें क्या करें कि अलग अलग चीजों के 3-4 मॉडल कर रहे हैं। जैसे हर भारत है तो वो डॉक्यूमेंट हमने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया है, तो 16 भारत कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। नाउ द पीपुल एज पर देयर जो है थिंकिंग दे कैन अडॉप्ट वन भारत। तो किसी को यदि हनी में रुचि है तो वो हनी भारत को हनी को डेवलप करे, राइट। लेकिन सब में टेक्नोलॉजी वगैरह सब में यूज होगी। So we will be and it will be part of the overall crime free Bharat, because crime free Bharat will be providing the ecosystem for creating those materials. हनी को पैदा कैसे किया जाए उसमें जो है ना क्राइम फ्री भारत will be providing the full eco and support system. हनी पैदा होने के बाद वो इंश्योर ये करेगा कि वो हनी किसी भी तरीके से पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। इट मींस देयर विल बी टेक्नोलॉजी कि इंडिविजुअल ग्रीड शुड नॉट बी इन पोजीशन टू अफेक्ट आवर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि नहीं तो क्या है कि हम ही में से कुछ दुष्ट लोग जो है ना उसका दुरुपयोग करके मिलावट करके जो एक ट्रस्ट है वो ट्रस्ट खत्म कर देंगे। तो चाहे गड़बड़ी क्राइम फ्री भारत के कोई स्टार्टअप करे या बाहर वाले करें, रिजल्ट तो सेम ही होगा, गड़बड़ी तो गड़बड़ी। सो क्राइम फ्री भारत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको गलत करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, वो मॉडल हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे। एंड देन वी कैन क्लेम कि साहब इसमें डेट टाइम एंड लोकेशन की स्टैंप है, प्योरिटी की स्टैंप है। इट कैन नॉट बी एंड इट हैज नॉट बीन adulterated in any way. We stand by the is purity, and then it will become, और उसमें साथ में मेडिसिनल वैल्यूज भी होंगी। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होंगी, मेडिसिनल वैल्यूज होंगी, तो वो तो अमृत तुल्य हो जाएगा। हमारा शहद बाकी शहदों से 100 गुना कीमत पे बिकेगा हमारा। और उसमें एक चीज ये भी है कि चूंकि हम जो है ना सब चीज विदेशों के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, पहले हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि इंडियंस की नीड बहुत रीजनेबल रेट पे क्रिएट होना, मतलब सर्व होना चाहिए। एंड व्हेन वी विल बी सेलिंग इट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, देन वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग द दिस वैल्यू। यहाँ तो बल्कि हमारा उल्टा रहेगा, वी विल थिंक ऑफ द अफोर्डेबिलिटी फर्स्ट, सो दैट यदि मान लो आपको कुछ चीज जो है जो डेली लिविंग के हिसाब से मिलना चाहिए, दैट आई विल ट्रीट द फंडामेंटल राइट एज ए ह्यूमन। और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भी हमारा सिस्टम आपको पहुंचा देगा, लेकिन मुफ्त में नहीं पहुंचाएगा। इट विल आपके अगेंस्ट जो है ना वो एक ऋण का खाता पैदा करके रखेगा। जब भी आप में पे बैक की कैपेबिलिटी होगी तो आपको पे बैक करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम आपको निखट्टा बना रहना नहीं देगा, तो वो आपके पास पहुंच के आपको कैसे जो है ना एक वेल्दी पर्सन में कन्वर्ट करे, ये बैक एंड इंजन काम करेंगे। तो ये साइकोलॉजिस्ट ये वो इनकी भी एक खोज क्रिएट करेंगे। सो एक मतलब कहना चाहिए कि जॉब एंड सर्विसेज के लिए हर तरीके के माइंडसेट के लोगों के लिए इतनी चीजें होंगी, एंड नन ऑफ देम शुड बी इन पोजीशन टू मिसयूज देयर नॉलेज फॉर amassing unreasonable wealth. So we are saying the system will guarantee you reasonable wealth, survival के लिए नहीं, wealth, but at the same time आप अपने निश नॉलेज को डिस्टॉर्ट करके amassing of the wealth should not be an option open to it. चलो बढ़िया, हम लोग हमारा थोड़ा लेट हो गया, चलिए अपन इसको खत्म करते हैं। और कल चूंकि मिलने का अपना रखा है, तो कल जो है ना
मित्रों के साथ अपन एक सेशन और करेंगे एंड वी विल ट्राई दैट हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड इसको जो है ना क्रिएट करने के नट एंड बोल्ट्स के लिए अपन टीम बनाना चालू कर देते हैं सो दैट ये हवाई खिलाफ उसमें ना रहे. दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेबल टूल क्योंकि ये बहुत जरूरी है. और इसमें जैसे मान लो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आई विश दैट ए heavy revenue stream should flow to you also so that you should have the purpose of contributing. बल्कि वो मैथमेटिकल मॉडल इवॉल्व करने में भी यदि आप मदद कर सकते हैं बिकॉज यू आर इन ए डेटाबेस एंड दोस काइंड ऑफ द थिंग्स तो वी कैन मेक ए टीम टू इवॉल्व दैट. बेसिकली देखिए एक चीज हम आपको कहना चाहते हैं कि देखिए आप सब लोगों का कमिटमेंट लेवल इज वेरी वेरी हाई, राइट? So sparing that much personal energy is difficult. So what I am saying, आप गुरु की कैटेगरी में रहो, उसके लिए चेले क्रिएट करो जो आपकी बात को करने में 24 घंटे लगे रहे, तो हम बिना डिले की चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है. और आपकी जानकारी के लिए जो अपना ये रिकॉर्डिंग सेशन है, ये मनीष विल बी अपलोडिंग इट इनटू द सिस्टम, so it will be available right on YouTube. So that will be the benefit, and the one of the purpose of uploading it, because there are a number of the people they have dedicated their life. If we can really bring them on our platform, then हमें उस नॉलेज का सीधा फायदा मिलेगा. अभी उनका नॉलेज एक छोटे से यदि वो सफल भी हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं आ रहा है. इट इज वेरी लिमिटेड. 100 एकड़ में, 200 एकड़ में, 500 एकड़ में उन्होंने कर लिया है. 500 एकड़ कैन रियली हेल्प आउट टू ए लिमिटेड पीपल ओनली. बट यदि ये जो है ना लैक्स ऑफ एकड़ में वही चीज जो है ना डिफरेंट मॉडल में जाएगी तो देन वी विल बी इन पोजीशन टू नॉट ओनली द फीड नेशन बट वी विल बी इन पोजीशन टू फीड इंटरनेशनल वो. और हम जो है ना ग्रेन पैदा नहीं करेंगे, हम मेडिसिनल चीजें पैदा करेंगे जो कि मतलब ग्रेन में भी मेडिसिनल ग्रेन हो, so that it should have the right kind of the impact on our body. वो हमारे शरीर में ओबेसिटी पैदा ना करे, वो हमारे शरीर में फुर्ती पैदा करे, एनर्जी पैदा करे, हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ाए, और इट शुड गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द पॉजिटिविटी. आज जो है ना साला नेगेटिविटी का अमाल लगा हुआ है, तो अब इस बात को यहीं विराम देते हैं. कल इसको अपन थ्रेड को आगे लेंगे, विचार मंथन आप कर लीजिए, एंड टुमारो वी विल डिस्कस. टुमारो जो है ना ज्यादा बात आपको करना है कि व्हाट इज योर सजेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग, हाउ वी एज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इट हैपन. ठीक, चलो कल बात करते हैं इस बारे में. राइट.